A very good morning to all from Anurag Joshi. In this video, we are talking about the octal to decimal conversions. It is a part of number system in which in the previous videos we are talking about the conversion from decimal to octal, hexadecimal and binary to decimal, octal and hexadecimal. Okay, so in today's tutorial we are talking about octal to decimal conversion and octal to binary conversion. Okay, we have to convert only in two forms the octal number, that are from octal to decimal and octal to binary. So we have started with octal to decimal. In this, if suppose you have any number as you can take any number from, say I take 172 to the power 8, and if you want to convert this into a decimal number, so what you have to do, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखा होगा कि हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करा था, उसके अंदर हमने क्या करा था, अगर आपको याद हो बाइनरी टू डेसिमल के अंदर हमने क्या किया था, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कार्ड के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं, इस वीडियो को, इसका लिंक दे रखा है, ठीक है, अब वहाँ से जाके वापस उसको रिकॉल कर सकते हैं. तो हमने क्या करा था कि जो भी नंबर होते हैं उनको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और जो उनकी पावर होती है उनसे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो सपोज हमें करना है 1, 7 और 2. तो हमने क्या किया था, अगर आप ये बेस 8 है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 टू द पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 2. ओके, so we know that if any number has the power 0, what it means its value is 1. तो ये हमारा क्या रहेगा, 2 इंटू 8 टू द पावर 0 कितना रहेगा आपका 1. ठीक है, देन 8 टू पावर 1, 8 इंटू 7 56, देन 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64. ठीक है, तो अभी कितना हो गया आपका 64 एंड 56 एंड 2 122. Okay, so 122 is the decimal number for octal number 172. I hope you have understand this. This is our normal integral number. Okay, so if you now want to do a fractional number, so for that, suppose I have a number 112.02. Okay, this is our octal number and we want to convert it into the decimal. Okay, so what I have to do, first of all we have to take only this integer part here, 1, 1 and 2. Now from right to left we write in the power of 8 to the power 0, 1, 2. Okay, so here 2 multiplied by 8 power 0 plus 1 multiplied by 8 to the power 1 plus 1 multiplied by 8 to the power 2. So this is 2 plus 8 plus 64. So it is our 74. Now we are talking about that fractional part. In fractional part we have minus 02. So as we studied in the previous videos, if we have the fractional number we have to multiply them with the negative powers. Okay, so for that I have to write 0 multiplied by a to the power 1 minus, then plus a to the power minus 2. 2 multiplied by a to the power minus 2. So a to the power minus 2 is equals to 0.15625. Okay, so when we multiply that 1.15625 into the 2, then what is the resultant is 15625 multiplied by 2 31250. So the answer of
that 112.02 in the decimal term is 74.3125 to the base 10. Okay, this is our original answer. This is octal to decimal conversion. Now we are talking about octal to binary. If you have any doubt regarding this, you can ask me anytime, and do practice of this because this is slightly confusing. Now we are talking about octal to binary. So for that, suppose you have a value that is 732 to the power 8 and you have to convert it in binary. So we know that binary numbers are always in the pair of zeros and ones. So we have to convert this number into the binary. So we have to convert them into the 0 and 1. So for that we have know about a table which we have studied in the previous videos. So what is the code for octal to binary? So I have to revise that. There is octal and that is binary. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the number of 0 is 0, then 1, then 0, then 1, then 0, then 1, then 0, then 1. Then here 0, 0, then 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay? This is, sorry. हाँ सही. Then 0, 0, 1, 1, 1, 1. ये होता है आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन. तो अब आपके पास सपोज करिए जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 का कोड क्या है 111. तो आपको कुछ नहीं करना, इसके रिलेटेड इसका जो भी बाइनरी नंबर है बस आपको वही लिखना है. इसका क्या रहेगा 1, 1, 1. देन 3 का क्या रहेगा 0, 1, 1. तो हम लिख देंगे 0, 1, 1. देन 2 का क्या है 0, 1, 0, 0, 1, 0. ओके, तो ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी जब ये कन्वर्जन करेंगे तो इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर क्या रहेगा आपका 111011010 is the binary number for octal number. Okay, this is the conversion of octal to binary conversion. So now next we are talking about hexadecimal number conversion. We know that the base of hexadecimal number is 16. Now I have to convert hexadecimal number to decimal number. So for that, if suppose you have a number that is 7AD, okay, this is our number and the base 16, and you have to convert it into the 10. So it is basic and the same method for all. If you want to convert a binary to decimal, octal to decimal, or hexadecimal to decimal, what you have to do, you have to multiply them with their base number with the power from right to left side. Okay, so इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे 7A and D. अब D का नंबर कितना होता है, A का कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए. तो हमने देखा था कि 9 तक तो ये एज इट इज रहता है. देन 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो 10 से हम डिनोट क्या कर देते हैं A. तो ये रहेगा आपका A, देन B, C, D, E एंड F. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है D है, तो हम D की जगह क्या लिख देंगे 13. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 13,
मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0, देन ए की पावर ए की हमारा क्या है 10 है, ए की जगह तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर, देन 7 मल्टीप्लाई बाई 16 का क्यूब। ठीक है, तो आपको ये स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। तो अगर अपन बात करें 16 की पावर 0 तो क्या रहेगा 1, तो ये आपके सिर्फ क्या रहेगा 13 मल्टीप्लाई बाई 1, देन 16 का स्क्वायर कितना रहता है, वो होता है 256, तो आपको 256 मल्टीप्लाई बाई 10 करना रहेगा, और 16 के पावर 3 ये होती है आपकी 4096 होती है शायद, ये होती है आपकी 4096। इसको मल्टीप्लाई आपको किससे करना है 7 से। आप एक बारी ये कंफर्म कर लेते हैं अपन, हमारे पास क्या है 256 को 16 से करते हैं, 16 6 96, 6 9 16 5 18 9 9 8 16 32 एंड 4096। ठीक है ना, यही आएगा आपके। तो ये आपका क्या रहेगा 13 देन 2560, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 और 4 63 एंड 7 6 7 4 28 28672 देन 2560 एंड देन 13। तो आपका जो 7AD का हेक्साडेसिमल नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा 31245, ये आएगा इसका डेसिमल नंबर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार नहीं आया तो वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले अपन जैसे ए और डी देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसमें आपको अगर किसी भी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द बेस एंड विद द पावर 0 to n-1। ठीक है, और कहाँ तक करते हैं हम, राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास था डी, तो डी का कोड हमें क्या होता है पता है कि डी का कोड क्या है 13, तो मैं क्या करूँगा 13 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 करूँगा, देन ए का क्या रहेगा 10, तो 10 मल्टीप्लाई 16, देन 7 मल्टीप्लाई 16 का क्यूब, क्या करूँ सॉरी गलत होगी, यहाँ पे 0 ये 1 और ये 2 है, सॉरी ये आपके 160, ये 13 है ही है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 42 1792 में 163 ऐड करेंगे, सर फिर 13 है ना, 173 ऐड कर देते हैं। आपका आंसर क्या आएगा 1965 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि हमने क्या पता है कि जब अपन इस तरह से चलते हैं तो ये कहाँ से चलता है 0 से लेके n-1 चलता है, मतलब डिजिट्स आपके पास 3 है तो जो स्क्वायर रहेगा वो कितना रहेगा n-1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए था। ठीक है ना, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, उसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्टेंट आया उसमें मैंने इन दोनों को साथ में ऐड कर दिया तो आपका आया 1965। ओके, ये होता है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के अंदर वही, अब यहाँ पे ऑक्टल की जगह अगर आप सपोज करिए आपके पास हेक्साडेसिमल होता, वापस मैं एक बार इस टेबल को बना देता हूँ, बनाने का तरीका आप लोगों को भी आ गया होगा आई होप। ये है मेरा हेक्साडेसिमल और ये है मेरा बाइनरी नंबर। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 8 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 बस। ठीक है, फिर
2 बारी 0, 2 बारी 1 लिखना है, 2 बारी 0, 2 बारी 1, 2 बारी 0, फिर 2 3 4 बारी 0, 1 2 3 4 बारी 1, 1 2 3 और 4 रहेगा यहाँ पे, फिर 8 बारी 0, 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बारी 1। ये चलता रहेगा आपका इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं अपन A B C तक आ रहा है, 2 3 4 6, अगर आप अभी तक यहीं तक देखते हैं अपन, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के अंदर मेरे को कन्वर्ट करना है। तो सपोज करिए आपके पास कोई नंबर दे रखा होगा, अब यहाँ पे 8C9, ठीक है। तो अब वापस सेम टू सेम है जैसा हमने ऑक्टल टू बाइनरी के अंदर कहा था, वो क्यों है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इनका जो बाइनरी नंबर है बस आपको वो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है आप ऐसे टेबल बना लीजिए, इजी रहेगा। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी फर्स्ट बिट है वहाँ पे आप सिर्फ एक बारी 0101 लिखना है, जो सेकंड बिट है वहाँ पे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, देन इन द थर्ड बिट आपको 4 बारी 0 4 बारी 1 लिखना है, जो सबसे फोर्थ बिट है उसके अंदर 8 बारी 0 और 8 बारी 1 लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको पास एक टेबल बन जाएगी। अब 8 का जो कोड है वो इसके हिसाब से क्या रहेगा हमारा 1000, ठीक है। देन सी की बात करें 1101 1101, और 9 का क्या रहेगा आपका 1001 1001। तो ये आपके हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। इजी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस करना घर पे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी नंबर अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आप पूछ सकते हैं।